आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। ये चार्ल्स डिकेंस का नावल 1861 में पब्लिश हुआ था और ये इनका मोस्ट फेमस नावल है। इस नावल पे बहुत सी मूवीज़ बन चुकी हैं और लेटेस्ट मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के नाम से ही। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसका नाम होता है फिलिप रिप, जो अपना नाम तोतली ज़बान में नहीं ले पाता, तो वो फिलिप को पिप पढ़ता है और उसी पिप को उसका निकनेम बना दिया गया है। तो ये कहानी पिप की है और ये गरीब लड़का बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को जन्म दे लेता है जो दूसरे लोगों से उसे पूरे होने की उम्मीद होती है, और ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं धीरे धीरे करके टूटती हैं और लास्ट में उसके पास सिर्फ वही बचता है जो उसने मेहनत से कमाया होता है। वो जिनसे प्यार की उम्मीद रखता है उनसे प्यार नहीं मिलता और जिनसे वो नफरत करता है वो एक्चुअल में उसके रियल लवर निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पिप एक युवा अनाथ बच्चा अपनी बहन मिसेस जो एक खड़ूस और तुनक मिजाज औरत हैं, और अपने बहनोई मिस्टर जॉ के साथ इंग्लैंड के कैंट इलाके में रहता है। एक शाम पिप कब्रिस्तान में अपने पेरेंट्स की कब्र पर बैठा हुआ था कि अचानक वहाँ जेल की वर्दी में जेल से भागा एक कैदी आता है। वह पिप को पकड़कर धमकी देते हुए कहता है कि उसके लिए खाना और उसकी लेग आयरन्स को काटने के लिए एक फाइल लेकर आए। सीधा साधा नवयुवक पिप उस जेल से भागे कैदी को खाना और फाइल लाकर देता है। Keep still, you little devil, or I'll cut your throat. No, sir, no. Tell us your name. Quick. Pip. Pip, sir. Sir. Show us where you live. Point out the place. There, sir. There. Oh. 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 Now, where's your mother? There, sir. No, sir. There, sir. Also Georgiana. That's my mother. Ah. And is that your father along with your mother? Yes, sir. Him too. Late of this parish. Ah. Then who do you live with? Supposing you're kindly let to live, which I ain't made up my mind about yet. With my sister, sir. Mrs. Joe Gargery. Wife of Joe Gargery, the blacksmith. Blacksmith, eh? Now look at here. Do you know what a file is? Yes, sir. Do you know what whittles is? Yes, sir. Food, sir. Then you get me a file and you get me whittles, or I'll have your heart and liver out. If you'll kindly let me keep upright, sir, perhaps I shouldn't be sick and perhaps I could attend more. Now you bring that file and them whittles to me in this churchyard tomorrow morning early. Yes, sir. And never dare to say a word of having seen such a person as me. No, sir. If you do, your heart and liver will be tore out and roasted and ate. There's a young man hid with me, and in comparison with him, I'm an angel. That young man has a secret way of getting at a boy and at his liver. Boy may lock his door, may be warm in bed, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. Say, heaven strike you dead if you don't. Heaven strike me dead if I don't. Now you know what you promised, young man.
Get off home. Good night, sir. Jack. Sir? You brought no one with you? No, sir. Now give no one the word to follow you. No, sir. What's in the bottle, boy? Brandy. I think you've got the ague, sir. Oh, I'm much of your opinion, boy. I'm glad you enjoy it. Hmm? I said I'm glad you enjoy it. Thank you, boy. I do. Aren't you going to leave any of it for him? Him? Who's him? The young man you spoke of. Oh, him. Oh, he don't want no food. He looked as if he did. Looked? When? Just now. Where? Over there. Did you notice anything about him? He had a big scar on his face. No, not here. Yes, there. Give us hold of that file, boy. If you're not wanting me, sir, we have company for dinner, and my sister will be up early. Thank you, boy. Thank you. एक दिन पिप को उसके अंकल पंबलचूक, जो एक अमीर लेकिन कंजूस व्यापारी हैं और हमेशा बड़े व अमीर लोगों की संगत में बैठना पसंद करते हैं, पिप को लेकर एक अमीर विधवा मिस हैविशम के घर सैटिस हाउस लेकर जाता है। पिप की बहन मिसेस जो पूरे मोहल्ले में जाकर बताती हैं कि उनका भाई आज सैटिस हाउस खेलने जा रहा है। गरीबों के लिए अमीरों के घर जाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता। मिस हैविशम एक सन की महिला हैं जो हमेशा एक पुरानी वेडिंग ड्रेस पहनी रखती हैं जब कभी भी वो घर से बाहर निकलती हैं। वो अपने घर की सारी घड़ियों को एक ही समय में रोके रखती हैं। दरअसल मिस हैविशम को उनकी शादी के दिन ही उनका हस्बैंड, उनका मंगेतर छोड़कर चला गया था। इसी वजह से वो थोड़ी सनकी स्वभाव की हैं। जब पिप सैटिस हाउस पहुंचता है तो उसकी मुलाकात अपनी हम उम्र एस्टेला से होती है, जो मिस हैविशम की बेटी हैं। एस्टेला की खूबसूरती देखकर पिप को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एस्टेला एक घमंडी अमीर लड़की है जो पिप को बहुत कोल्डली और नफरत के साथ ट्रीट करती है। लेकिन फिर भी गरीब पिप अमीर एस्टेला के प्यार में पड़ जाता है और पिप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाकर एक अमीर व्यक्ति बनने का ख्वाब देखने लगता है ताकि एस्टेला से शादी करने लायक बन सके। उसे आशा है शायद मिस हैविशम भी उसे जेंटलमैन बनाना चाहती हैं ताकि वो उसकी शादी अपनी बेटी एस्टेला से कर पाएं। लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब कई महीने लगातार सैटिस हाउस जाने के बाद एक दिन मिस हैविशम उसे एक कॉमन मजदूर बनाने में मदद करने की बात करती हैं। मिस हैविशम की निगरानी में पिप को उसके जीजाजी यानी मिस्टर जॉ के पास भेज दिया जाता है, जो गांव के लुहार हैं। उनके यहां अप्रेंटिस बनकर पिप पहुंचता है। पिप भट्टी पर बेमन से कार्य करता है।
क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ा आदमी और एक जेंटलमैन बनने की। लुहार का काम करते करते वो पढ़ाई भी जारी रखता है। पढ़ाई में उसकी मदद एक यंग ऑर्फन बिडी कर रही हैं जो पिप की पड़ोसन हैं। मिस्टर जॉ की दुकान पर एक मजदूर है ऑरलिक, जो एक साइको है। दूसरों को दर्द पहुंचाकर उसे अच्छा महसूस होता है। ऑरलिक पिप को बहुत सताता है। उसी रात पिप की बहन मिसेस जो पर कोई अनजान व्यक्ति हमला करता है, जिससे वो अपनी आवाज, अपनी याददाश्त खो देती हैं। मिसेस जॉय अपने भाई पिप को सिग्नल्स देकर समझाती हैं कि ऑरलिक ने ही उन पर हमला किया था। ऑरलिक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक दिन जैगर्स नाम का एक वकील एक अजीब सी न्यूज लेकर पिप के घर पहुंचता है। वो बताता है कि कोई पिप की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाना चाहता है और जब वो 21 साल का हो जाएगा तो उसे पर मंथ कुछ पैसा भी मिला करेगा। और ये शख्स अपनी पहचान पिप और उसके परिवार से छुपाता है। लॉयर जैगर्स बताता है कि सीक्रेट बेनिफैक्टर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता। पिप की एक्सपेक्टेशंस जो मिस हैविशम से टूटी थीं, उन एक्सपेक्टेशंस को फिर से पंख लग जाते हैं। पिप को लगता है कि मिस हैविशम ही उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर हैं जो उसे जेंटलमैन बनाना चाहती हैं ताकि अपनी बेटी एस्टेला से उसकी शादी करा सकें। एस्टेला को लेकर उसके ख्वाब सच होते दिखाई पड़ते हैं। लॉयर जैगर्स बताता है कि पिप को उसके लार्ज फॉर्च्यून को पाने के लिए लंदन जाना होगा। लंदन में पिप एक यंग जेंटलमैन हर्बर्ट पॉकेट से मिलता है और दोस्ती करता है, जो मैथ्यू पॉकेट का बेटा है। मैथ्यू पॉकेट पिप के ट्यूटर हैं। पिप उन्हीं से पढ़ता है। मैथ्यू पॉकेट और हर्बर्ट पॉकेट बचपन में सैटिस हाउस आया करते थे, तो पिप की मुलाकात हर्बर्ट से पहले हो चुकी है, लेकिन तब वो दोस्त नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब हर्बर्ट पिप का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। पिप का एक दोस्त और बनता है वैमिक, जो लॉयर जैगर्स का क्लर्क है। नए दोस्तों में पिप अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है। अब वो उनके लिए गवार हैं, खास तौर पर मिस्टर जो। मिस्टर जॉ की हरकतें उसे इरिटेट और ह्यूमिलिएट करती हैं, लेकिन मिस्टर जॉ पिप की चिंता करते हैं। जब पिप 21 साल का होता है तो उसे अपनी संपत्ति हर महीने पैसों के तौर पर मिलने लगती है। पिप हर्बर्ट की सीक्रेटली मदद करता है। उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। हर्बर्ट का एक बड़ा बिजनेस बनाने का सपना है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा से शादी कर सके। लेकिन पिप और हर्बर्ट अब एक अनडिसिप्लिन्ड और अय्याशी वाला जीवन जीने लगे हैं। उनके ऊपर कुछ उधार भी हो गया है। ऑरलिक फिर इनकी लाइफ में एंट्री करता है। वो मिस हैविशम का पॉटर बनकर आता है, लेकिन जब पिप ऑरलिक की पास्ट में की गई हरकत बताता है, मिस्टर जैगर्स ऑरलिक को नौकरी से हटा देते हैं। पिप की बहन मिस्टर जो मर जाती हैं। पिप वापस अपने घर फ्यूनरल में जाता है। पिप अपनी बहन की मौत पर बेहद दुखी होता है। बहुत साल बीतने के बाद अचानक उसके कमरे में एक जानी पहचानी परछाई नजर आती है। साफ नजर आने पर पिप उसे पहचान जाता है कि यह तो वही कैदी है जिससे वह कई साल पहले कब्रिस्तान में मिला था। कैदी का नाम मैगविच है। मैगविच एक बेहद ही शॉकिंग बात पिप को बताता है, जिससे पिप की सारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। मैगविच बताता है कि वो ही पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर है। पिप का अपने बचपन में किया गया एहसान, मैगविच को खाना और फाइल देना, मैगविच भुला नहीं पाया था। मैगविच ने फिर अपने आप से वादा किया था कि अब जो कुछ भी कमाएगा इसी बच्चे के लिए होगा। मैगविच ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संपत्ति बना ली थी। उसी संपत्ति की कमाई हर महीने पिप को मिला करती थी। मैगविच बताता है कि लंदन पुलिस उसके पीछे है। पिप की उम्मीद कि मिस हैविशम ने उसे जेंटलमैन बनाया ताकि अपनी बेटी एस्टेला से शादी करवा सकें, टूट जाती है। लेकिन पिप फिर भी मैगविच को लंदन से भगाने का वादा करता है, क्योंकि वो मोरली ऑब्लाइज्ड महसूस करता है। मैगविच बताता है कि सिर्फ लंदन पुलिस ही नहीं, उसका पार्टनर इन क्राइम कॉम्पिसन भी मैगविच को ढूंढ रहा है।
दरअसल कॉम्पिसन ने अपने क्राइम्स का ठीकरा मैगविच के सिर फोड़ा हुआ है। एक मिस्ट्री पिप के सामने आती है। हर्बर्ट पिप को बताता है कि मिस हैविशम को उनकी शादी के दिन जिस ने छोड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि कॉम्पिसन ही है, और एस्टेला मैगविच की बेटी है, मिस हैविशम की नहीं। और मिस हैविशम एस्टेला का इस्तेमाल मासूम लड़कों को उसके प्यार के जाल में फंसाकर अपनी जो सनक है उसको पूरा करने के लिए करती हैं। एस्टेला को जो घमंडी और गुरूर के साथ पैदा किया गया है उसमें मिस हैविशम की सनक है। लॉयर जैगर्स के घर एक नौकरानी है मॉली, जिसे सभी उसके रूखेपन की वजह से टाइग्रेस कहते थे। मिस्टर जैगर्स उसे एक औरत के कत्ल के जुर्म में बचा रहे थे। जब मॉली से कत्ल हुआ तो उसकी बेटी उससे जुदा हो गई थी। जब कई सालों बाद पिप एस्टेला से मिलता है जो अब और भी खूबसूरत हो गई है, तो वो पहचान जाता है कि एस्टेला मॉली की बेटी है, क्योंकि उन दोनों के स्वभाव मिलते थे। जब सब कड़ियां जुड़ती हैं तो पिप को एक बात और पता चलती है कि मॉली मैगविच की पत्नी है और एस्टेला उसकी बेटी, जिन्हें वो मरा हुआ समझता था। कई हफ्ते मैगविच के साथ बिताने पर पिप समझ जाता है कि मैगविच एक भला आदमी है और वो उसकी देखभाल करने लगता है। मैगविच को लंदन से बाहर भगाने से पहले पिप सैटिस हाउस जाता है और एस्टेला को और मिस हैविशम के सामने एस्टेला के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देता है। एस्टेला पूरे घमंड के साथ पिप से शादी करने को मना कर देती है और ड्रमल नाम के अमीर लड़के से शादी कर लेती है। मिस हैविशम पिप से पास्ट में किए गए बिहेवियर पर माफ़ी मांगती हैं, वह माफ़ कर देता है। उसी दिन मिस हैविशम आग के पास बैठी हुई होती हैं और उनके कपड़े आग पकड़ लेते हैं। पिप उन्हें बचा लेता है, लेकिन वो बहुत जलने के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिरकार वो समय आ जाता है जब पिप और उसके दोस्त मैगविच को लंदन से भगा रहे होते हैं। एक बोट का इंतजाम किया गया है जो मैगविच को लंदन से बाहर लेकर जाएगी। मैगविच उस बोट पर निकलता ही है कि दूसरी बोट पर कॉम्पिसन उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों में लड़ाई होती है। कॉम्पिसन डूब जाता है और मैगविच को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पिप रोजाना उससे मिलने जेल जाता है। वो मैगविच को बताता है कि उनकी बेटी जिंदा है और वो उससे बहुत प्यार करता है। पिप 1 महीने के लिए बीमार होता है। मिस्टर जो उसकी बहुत देखभाल करते हैं। पिप को मिस्टर जो से किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। वो मिस्टर जो से माफ़ी मांगने और बिडी से शादी करने के इरादे से वापस लौटता है तो देखता है मिस्टर जो और बिडी आपस में शादी कर रहे हैं। वो उनकी खुशी में शामिल होता है। मैगविच के गिरफ्तार होने के बाद उसकी सारी संपत्ति जिससे पिप कमाई कर रहा था उसे जब्त कर लिया गया। पिप अपने दोस्त हर्बर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा, जो अब हर्बर्ट की वाइफ हैं, उन दोनों के साथ रहता है और हर्बर्ट की फर्म में 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वह उनका पार्टनर बन जाता है। 11 साल बाद पिप वापस अपने गांव जाता है, जो और बिडी और उनके बेटे से मिलने। उनका बेटा बिल्कुल पिप की तरह मिस्टर जॉ के साथ आग के पास बैठा बातें कर रहा होता है, जैसे पिप कभी मिस्टर जॉ के साथ बातें किया करता था। गांव पहुंचते ही उसे अपने पुराने प्यार एस्टेला की याद आती है। उसके पांव सैटिस हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां वो एस्टेला को उदास और शांत देखता है, जैसे एस्टेला का घमंड चूर चूर हो गया हो। ड्रमल ने उनके साथ मारपीट की थी और वो उनके साथ सेक्सुअली और फिजिकली हैरेसमेंट किया करता था और हाल ही में ड्रमल की मृत्यु हुई है। एस्टेला पिप से कहती है कि उसे दिल टूटने का दर्द पता चल गया है और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ गार्डन में टहलते हैं। पिप मन ही मन कहता है कि अब कोई उन्हें